Hey, good evening, everybody. How you all doing today? Yeah, we're going to be continuing practical chemistry right now. You should be able to see me right about now. I see a few people already waiting in the chat. That's amazing. All of you excited about this, huh? Hey, Hare Krishna, Saloni, Loveleen, how you doing? Good evening. कैसे हैं सब लोग? So, we started off practical chemistry with a bang. We went into quite a bit of detail, right? In the last session, हम लोगों ने किया था, क्या किया था? हाँ, फ्लेम टेस्ट के इनसाइड आउट हम लोगों ने देखा, राइट? कोबाल्ट ब्लू ग्लास यूज करते हैं, दिस दैट एटसेट्रा एटसेट्रा. You're able to see me and hear me, right? Just checking all those general things away. Just let me know in the comment if all that's fine. We did that. Then we looked at some preliminary tests कि अच्छा गर्म करने से क्या होता है, देखने से smell and all of that. We also looked at the different classifications of anions, right? And that's what we're going to continue today. हमने पहला group किया था anions. आज we'll do the second and the third one. We'll keep it light, okay? And then, wait, hold on. There's something here. Sorry about that. There was another chair that was coming into the picture. How are you doing? Radhika, Lenovo. Pranam. Yeah. So we looked at some classifications of anions, right? हम लोगों ने ग्रुप ए कंप्लीट किया था लास्ट सेशन में एंड बहुत और भी फंकी चीजें की थी. चेक दैट सेशन आउट. This is the second session of practical chemistry that we're doing. We'll do a lot more and there are good surprises coming your way very, very soon. Couple of amazing teachers that you're familiar with who are going to come and help you out. Khair, for now, we're going to focus on this, right? अगर हम लोग एसिड से मिक्स करें तो एनायॉन्स कैसे बिहेव करेंगे, राइट? सो वी आर लुकिंग एट दीज एनायॉन्स. जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार, राइट? यहाँ पे हम लोग इस सेशन में क्या करने वाले हैं. Who's in chat? Simon, Salma, what's up? Good evening. Hey, let's go, let's go. Yes. So we did group A anions last time. Group A क्या था? Group A was something that reacted with dilute H2SO4 या फिर dilute HCl and it gave you a vapor or gas right away. और हमारे सिलेबस में क्या था? कार्बोनेट आयन और सल्फाइड आयन. सल्फाइड आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट था. यू रिमेंबर क्या था? लेड के साथ, लेड एसिटेट के साथ काला कलर देता था लेड सल्फेट, सल्फाइड, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड का लाइम वाटर टर्न मिल्की एंड देन और ज्यादा डिसॉल्व करो तो भाई वो कलर चला जाता, वो सॉल्युबल हो जाता था, राइट? बाइकार्बोनेट बन जाता था. कंफर्मेटरी टेस्ट क्या था कार्बोनेट का? याद है? याद नहीं है तो प्लीज लास्ट वाला सेशन देख लेना. आज हम लोग क्या करेंगे? we'll look at groups B and group C. What is group B? The focus of group B. Let's start with group B right now, right? All good, सब कुछ ठीक है? या ये सेशन काफी चिल है, थोड़ी कहानियां हैं. आई नो दैट मे बी लैब मैनुअल आपने शायद नहीं पढ़ा होगा तो मे बी थोड़ा डर लग रहा होगा, बट इट्स ओके. लैब मैनुअल पढ़ सकते हैं. व्हाट आई एम टीचिंग यू इज ऑलमोस्ट एंटायरली देयर इन लैब मैनुअल इटसेल्फ. कुछ टिप्पणियां, सम टिप्स मे बी एक्स्ट्रा है. टिप्पणी एंड टिप्स आर सिमिलर, हाँ. खैर, एनीवे, I'll link the, I think it's already linked, if it's not, description में I'll link the NCERT का lab manual itself, official site, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? The only difference with them, what they're doing there and here is कि हम लोग एक एक चीज पे एक बार बात करेंगे, उसमें थोड़ा intimidating लगता है, like the whole of inorganic chemistry, right? खैर, so what is group B? It produces a vapor or a gas with concentrated H2SO4 या HCl, ठीक है? Concentrated acid use करना है या तो H2SO4 या HCl and they form a precipitate with AgNO3. Obviously, नाइट्रेट आयन को छोड़ के बाकी जो हैलाइड आयन्स हैं यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट्स. नाउ व्हाई डू दे फॉर्म प्रेसिपिटेट्स? आई टोल्ड यू टू मे बी रीड अप अ लिटिल बिट ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम. केएसपी वैल्यू थोड़ी कम होती है, राइट? बहुत कम होती है इनकी. AgI, AgBr, AgCl, तो प्रेसिपिटेट आउट इजीली, ठीक है? बेसिकली तो पढ़ा रहे हैं लेनो. पहला सेशन बेसिक, फर्स्ट सेशन, दिस इज सेकंड सेशन. चेक आउट दैट सेशन इफ यू नो you haven't already. This is the second one. All right. Hey healer, Hare Krishna, what's happening? इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? राधिका स्टीलिंग वर्ड्स हमारे भावना को बिल्कुल समझ गए. राधिका, हम लोग सवाल करेंगे. दिस इज व्हाई इस सेशन में थ्योरी विल बी लिमिटेड. मतलब जितना भी थ्योरी नॉर्मल करेंगे, विल डू क्वेश्चन आल्सो, डोंट वरी. एज ऑलवेज हम लोग थ्योरी और क्वेश्चन दोनों करेंगे. पहले सेशन में हमने थ्योरी वाज थ्योरी बिकॉज़ दैट्स फर्स्ट सेशन, और हर पहले सेशन में हमेशा हम लोग आराम से पढ़ते ही है ना, कोई भी चैप्टर हो तो वी डिड दैट. नाउ वी गोना डू दिस एंड हम लोग विल लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस. गुड क्वेश्चन राधिका. ऑलराइट. Pranam, Anish ji. Hello. Hey, Richa. Let's get started right away. So, let's look at the identification of chloride ions first. Okay. So, what do? You treat this with warm concentrated H2SO4. Obviously, अगर chloride ion है, तब you will not treat with HCl. ठीक है? I mean, please, ये सब basic चीजें हैं, but याद रखिए. I know you will use some flashcards to remember all this, but जल्दबाजी में ये मत लिख दीजिए कहीं पे, और don't think that HCl will react with chloride. That doesn't make sense. The same ion. By the way, there's a site called Anki, a guy, an amazing person called Lime.
on Discord told me about it. This is really great for flashcard. Maybe you're already using it for bio. You can make use of it for inorganic chemistry as well. It's a site. It's free. It's completely free. You can check it out. Ping me on Telegram. I'll give you more info. It's free. It's completely free. Okay. Anyway, so H2SO के साथ pungent smelling gas. See, ये NCERT में लिखा है, इसे हमने लिख दिया है pungent smelling gas. But HCl, to be honest, is scary more than pungent smelling. मतलब it suffocates you and it's scary, right? Fumes निकलते रहते हैं. So I would say specifically pungent would be SO2, right? HCl मेरे हिसाब से pungent तो नहीं है. HCl is scary, it suffocates you. Not pungent. Pungent मतलब hits you, it's not pleasant. Anyway, खैर वो सब बात छोड़ो. तो फ्यूम्स बनते हैं NH4Cl के when you bring ammonia solution, aqueous ammonia solution in contact with the evolving gas. Aqueous ammonia क्या होता है? NH3 plus water. As soon as you mix both of these, you get NH4OH. और कौन सा रिएक्शन होता है भाई NH4HCl के साथ? ये तो आपने बहुत समय से आप लोग देख रहे हैं, राइट? Even from lower grades, here is the equation. Lenovo, yes, but let's stay on topic. Yeah, let's stay on topic. You can check these things out on the internet. Yeah. Saloni पहला lecture था couple of days back. You can check it already. Okay, on Tuesday I think. आज क्या है? Thursday, right? On Tuesday will be the first session. You can check it out. खैर, NaCl with H2SO4 gives you HCl and this is fuming. Fumes तुरंत निकलते हैं. By the way, आप लोगों ने labs में देखा है HCl and H2SO4 को sand में रखते थे. At least when I was in school, I remember that very clearly. सबसे कोने में लैब में एक स्कैरी साइट होता था. एवरीवन लाइक वाओ, वो क्या, वो एसिड होगा वहां पे. एक बड़े से ग्लास कंटेनर में होता था और ओनली टीचर्स अलाउड टू टच इट. और वहां पे जैसे ही खोलते थे ना, तुरंत फ्यूम निकलने लगते थे. तो बिकॉज दे वर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, उसको सैंड में हमेशा रखा जाता था. खैर, तो HCl जो बनता है वो भी कंप्लीटली फ्यूमिंग होता है. एंड दैट व्हेन रिएक्ट विद NH4OH गिव्स यू व्हाइट फ्यूम्स, व्हिच इज अ गुड इंडिकेशन कि भाई क्लोराइड आयन है. इवन आफ्टर ऑल दिस आई एम सेइंग इंडिकेशन. क्यों इंडिकेशन? इसीलिए क्योंकि confirmatory test भी है. Don't worry about that. We'll start that as well. Hold on. Let's start this nice animation. Okay. Oh, that's great. Yeah, Simon. Sure. By the way, there are videos of practicals being done. Check it out on the channel. There are amazing videos that are already happening. And also check it out on the BYJU'S app. Practicals करने के लिए chemistry में बहुत amazing चीज हमने solve की है. खैर, H2SO डाला, देखो fumes निकल रहे हैं. Cl may be present. Yeah, fumes काफी कारण के हो सकते हैं. But what happens next is you basically make it mix with NH4Cl, and as soon as you do it, it gives you NH4OH and it gives you NH4Cl के precipitate. Okay, so that was an identification. Okay, the next idea is that of a silver nitrate test. This pretty much helps you figure things out for good. If you have chloride ions and Ag plus डालो तो बन जाता है AgCl, which is a white precipitate. Okay, so this precipitate is soluble in aqueous ammonia. हाँ, एंड फिर से आ जाता है HNO की 3 यार. ये सब चीजें याद रखना थोड़ा मुश्किल है. ओके, आई एग्री विथ यू देयर. ओके, व्हाट इज हैपनिंग? यू आर सेइंग अभी तक तो थिंग्स वर क्लियर, राइट? HCl को, क्लोराइड आयंस को यू ऐड H2SO4, यू गेट HCl, एंड दैट HCl यू रिएक्ट विद aqueous ammonia, यू गेट white precipitate. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखे. नेक्स्ट स्टेप, दैट वाज एन आइडेंटिफिकेशन आइडिया. अनदर वन इज कि ये जो आप Ag plus ion डालोगे, इट विल फॉर्म white precipitate. Now that white precipitate is soluble in NH4OH. अलग चीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज इट फॉर्म्स दिस सिल्वर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. वी विल डू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डोंट वरी, हम लोग डिटेल में करेंगे. एंड देयर यू विल सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मोर. दिस इन ये है कौन सा मीडियम? बेसिक मीडियम. यू सी दिस, राइट? मैंने बोला था कि आयोनिक इक्विलिब्रियम के छोटे छोटे आइडियाज अप्लाई होंगे. दिस इज द बेसिक कंपाउंड, राइट? क्योंकि NH4OH पेरेंट आयंस, वेल NH4 is weak base. You don't have to go into details, right? For sure है भाई. Please chemical equilibrium और ionic equilibrium revise कर ले अगर ये याद नहीं क्यों. This is the base. So if you make the medium acidic, then वापस आ जाता है आपका AgCl. All right? ठीक है? Any doubts so far? Any doubts? Yeah? Definitely Poonam. We will do questions. करेंगे जरूर, सवाल करेंगे. We have questions planned today. Yeah. Good evening Raghav. Any doubts so far? None, right? It's कहानी है. थोड़ी सी twisted कहानी है, but just कहानी है, right? Okay, now this one is really important. ये सब थे identification वाले. This is a confirmatory test. क्योंकि this beautiful color that you see is very very peculiar. This is called as a chromyl chloride test. And this is like बार-बार पूछा जाता है ये. You mix a small amount of salt, whatever you have, and same amount of solid K2Cr2O7. What is K2Cr2O7? हम लोगों ने DNF block में किया है इसको, right? There is a chromate ion and a dichromate ion. Both of these have the same 6+ oxidation state of chromium. These are strong oxidizing agents. Orange color का
और वो कलर चला जाता है एज दिस रिड्यूसेस टू Cr3+, या क्रोमियम 3+ जब बन जाता है तो। सो एसिडिक मीडियम है, मैंने एसिड डाला H2SO4, आई हैव डाइक्रोमेट. If you want to know more about dichromate, check out the other sessions we have done on DNF block. Okay, we have done this in detail. Dichromate क्या होता है, etc., etc., structure क्या होता है. So you heat this test tube and you get a gas, and that gas through sodium hydroxide को pass करो, and then you get a yellow solution. बहुत चीजें हो रही है. We'll write down the reaction. अभी तक क्या किया हमने salt लिया, okay, K2Cr2 लिया, H2SO4 लिया. पहली बात वो ना, उसको हम लोग लिख लेते हैं, पहले वो लिख लेते हैं, दूसरा स्टेप देखेंगे. पहला स्टेप क्या है, ये किया, ओके. दिस इज द रिएक्शन. दिस राइट हियर इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड, जो बन जाता है यहां पे, ओके. सो K2Cr2O7 with H2SO4 gives with NaCl gives you this. Now interestingly, if you look very carefully, मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हुआ है. You also see, या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन. यहाँ पे तो रेडॉक्स नहीं हो रहा है, राइट. क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमियम भी 6+ का ही लग रहा है मुझे. आप भी ट्राई करो, मुझे ऊपर से देखने ऐसा लग रहा है. यू गाइस आल्सो ट्राई इट आउट. यहाँ पे भी 6+ था. इधर ऑक्सीजन मस्ट बी -2, दिस इज -1, यहाँ पे -1 था, वही है. इट डज नॉट सीम लाइक द ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैव चेंज्ड, बट यू प्लीज कंफर्म दिस एंड टेल मी. आप भी थोड़ा ट्राई करिए. जरूर होगा मनन, ऑफ कोर्स होगा, श्योर होगा. गुड इवनिंग Shishine, sorry, Shishine, whatever you want to call it. So what did we do so far? Nothing fascinating. हमने salt लिया, K2Cr2 लिया, and you got something called chromyl chloride. Now this chromyl chloride, you put it into this thing, and you make it into 2 parts. Okay. पहली चीज को एसिटिक एसिड से एसिडाइज करो और ऐड करो lead acetate solution. Now you get a yellow precipitate of lead chromate, and this confirms chloride ions. Okay. This is the same चीज मैं फिर से लिख रहा हूं. Okay, you get this chromyl chloride का पहला पार्ट into NaOH, second part into acidified CH3COH को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, to this, then you get this. Okay, I add CH3COH to a Pb2+ salt. What I get is this guy right here. दोनों जगह पे हमको मिलता है ये चीजें, ठीक है. This from here gives me a yellow precipitate finally of lead chromate. Okay. रेडॉक्स नहीं हो रहा है, राघव कर लो, हमने किया है, वी हैव डन दिस इन डिटेल. रेडॉक्स में तो किया ही है. ओ अच्छा यहां नहीं हो रहा है. श्योर नहीं हो रहा है. ओके, व्हाट अबाउट दिस? इज रेडॉक्स हैपनिंग ओवर हियर? फिर से देखते हैं. यहां पे भी लग रहा है 6+ है, इधर भी 6+ है. इट्स जस्ट अ थिंग टू क्रॉस आउट, यू नो. सवाल पूछ सकते हैं, नीट कैन आस्क यू दीज थोड़े से बारीकी वाली चीज देखी. इज दिस अ रेडॉक्स रिएक्शन? एंड यू लाइक अरे बाप रे, ये रिएक्शन कभी देखा ही लाइफ में, बट मोस्ट लाइकली देखा होगा इन थिंग लाइक दिस. खैर, एनीवे, व्हाट अबाउट हियर? ये प्रेसिपिटेट आपका बना येलो कलर, और कहीं पे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है? नहीं यार, अभी भी इसमें भी नहीं लग रहा है. खैर, हियर इज व्हाट दिस रिएक्शन लुक्स लाइक. ओके, लेट मी प्ले दिस नाइस थिंग फॉर यू. ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर? यू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड यू ऐड H2SO4 और उसको हीट करो. ठीक है, हीट करते ही यू गेट अ गैस, एंड देन दैट गैस यू पास थ्रू NaOH. ओके, व्हाट दिस गैस दैट यू गेटिंग, ये ऑरेंजिश कलर गैस, दिस इज क्लोराइड. पास दैट थ्रू NaOH. ओके, और उसमें फिर ऐड करिए आप PbCH3CO होल ट्वाइस, मतलब कि एसिडिफाइड लेड. एसिडिफाइड मतलब एसिटेट आयन स्पेसिफिकली उसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग. ऑलराइट, एंड व्हाट यू गेट फाइनली इज अ येलो सॉल्यूशन ऑफ PbCrO4. नाउ दिस कंफर्म्स इट. ओके, दिस कंफर्म्स. कुमार, आपको कैसे रिकॉग्नाइज करें? कुमार, या श्योर. विशाल, राइट? श्योर. ऑलराइट, दिस इज द होल थिंग. दिस येलो थिंग गिव्स यू a confirmation of chloride ions. Cool. I know that if I ask you, आपको कोई डाउट है, तो इस चीज में डाउट किस टाइप का होगा? कलर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? Anyway, let's try this question out. आप लोग सवाल करना चाहते थे. Let's look at this. Which of the following statements, memory based, which of the following statements is or are incorrect for chromyl chloride test? What do you think? No doubt. All right. Yeah, it's direct. कहानियां ही है. Yeah, most of qualitative analysis is going to be stories, but well-crafted stories. You have to figure out कहाँ पे connection बैठ रहा है, so that you don't have any trouble remembering these ideas. चलो, इस वाले को try करो. Formation of chromyl chloride vapor, ये तो बनता है, right? Chromyl chloride के साथ ही आप mix करते हैं NOH के साथ, then you add acidified lead to it. Acidified lead मतलब कि acetate ions and lead to it, and you get PbCrO4, right? यहाँ तो देखो lead chromate बनता है. रेडिश ब्राउन वेपर, नहीं, रेडिश ब्राउन वेपर, अच्छा यही तो है, यही तो है.
chromyl chloride is this chap right here. Orange बोल सकते हो, reddish brown, orange. If you put a nice thing to it, next to it, it looks reddish brown, whatever. Same thing, ठीक है. तो maybe A and C are definitely correct and not the answer, right? D में doubt हो सकता है, but B for sure is incorrect, क्योंकि देखो उसमें क्लोरीन तो नहीं निकल रही कहीं पे. Whatever we did, remember मैं बार बार बोल रहा था चेक करो redox reaction है कि नहीं. Okay, this was a hint there. If there was oxidation of the chloride ion happening, then you would get chlorine gas. But वो नहीं हुआ है. Did you see वो डिटेल वाली बात छोटी सी क्या थी? या जस्ट आइडेंटिफाइंग कॉन्सेप्चुअली यार redox reaction नहीं दिख रहा था. Then you will be sure कि यार क्लोरीन तो नहीं बना, है ना? क्लोरीन नहीं बना. All right, good job कुमार. It's all right, don't worry. ये हम लोग सब पहली बार कर रहे हैं राधिका प्रोवत. It's good that you're trying. Don't worry, ऑप्शंस आंसर सही है गलत है, ठीक है. Remember, I know you may be like reddish brown मतलब हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है, maybe. Cool, ठीक है. That's the next one. Identification of bromide ions. That's the next one, ठीक है. So in this case, we go with concentrated H2SO4 फिर से. यहां निकलते हैं reddish brown fumes and indicates the presence of bromide ions. एक मिनट मुझे चेक करने दो. Is this possible कि पिछला वाला सवाल is more than one correct? We can check it out. हाँ, chromyl chloride color. उसका कलर क्या दिया है? मुझे तो याद था ऑरेंज ही था. तो जैसे रेडिश ब्राउन ही है. हाँ, रेडिश ब्राउन ही है. यू कैन लुक इट अप ऑनलाइन एज वेल. जस्ट कंफर्मिंग हाँ कि लास्ट वाला मल्टीपल करेक्ट नहीं था. जस्ट कंफर्मिंग दैट. तो ठीक है, लास्ट वन वाज रेडिश ब्राउन कलर की. दो गैस है मतलब ब्रोमीन और क्रोमाइल क्लोराइड, दोनों रेडिश ब्राउन है. बी केयरफुल. खैर, अगर मैं हीट करूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, देन आई गेट रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एंड दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस. ओके, इंडिकेट्स, ठीक है. अब हम उसको जो है लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में, एज सिंपल एज दिस, राइट. बट हियर इज द फनी थिंग, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से दैट ये जो रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन गिव्स यू Br2 गैस. बट मैंने काफी रिसर्च की, काफी मतलब कि मैंने I looked at 2-3 books, I looked at some online resources. What I found was that it's HBr that's formed. So there is a bit of a, क्या बोलते हैं इसको, disconnect. Sometimes in literature it says कि this is bromine gas is formed, but most of the research that I looked at, it said that HBr was formed, and HBr का भी reddish brown color होता है, ठीक है. HBr क्या है? Hydrogen bromide. So we'll take that with a pinch of salt, no pun intended, yeah, ठीक है. And that was the reaction that makes sense right there. Check it out. अब क्या हो रहा है? Brown fume निकलता है. And what does this brown fume do? It's just something interesting. अगला स्टेप बताते हैं. इसको खत्म होने दो. आपका सही था. Good job, Raghav. Concentrated H2SO4 डाला and woof, look at that. Yeah. Now these fumes, okay, indicates that हो सकता है कि भाई bromide ion इसमें होगा. इन fumes को हम लोग डालेंगे in copper turnings. Copper turnings में क्यों डालेंगे? We will put them through copper turnings. Okay. And उसके बारे में बात करेंगे. Just a second, hold on. पहले let's complete that half reaction. half मतलब कि आधा, not half in the terms of redox reactions. हमने आधी बात की, पूरी बात कर लेते हैं. उसको पहले खत्म करते हैं. HBr बना. Now these fumes are intensified by the addition of MnO2. MnO2 क्या है? MnO2, you remember, manganese shows many oxidation states. ये बीच वाला है. Mn+4 state है, right? This is the +4 वाला. कि MnO4- में +7 state होता है. Mn2+ में सबसे कम होता है. This is the बीच वाला state. Okay. Now these guys helps you form Br2 gas for sure. और how do you know bromine vapor बना है? This is the confirmatory test. This is very interesting. यहां लिखा है, बहुत जरूरी बात है, ध्यान से पढ़ो. Bromine vapors turn starch paper yellow. Yellow? ये आपने कभी पहले सुना है? Starch मतलब blue. Starch मतलब blue. Starch मतलब blue. आप लोग जब से starch बारे में सुन रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं कि भाई starch paper डालो तो कलर हो जाता है blue. Okay? That's why I'm saying be careful over here. When you get bromine vapors, it turns starch paper yellow. Okay. Cool. Sri Shine is asking an interesting question. I'm going to take that question for a second. It's very important for you guys. NMC has reduced syllabus and deleted many chapters from Chem. So do we have to do those chapters or can we totally skip and follow the updated syllabus? No, not at all. इसकी interruption की बात नहीं है, तो बहुत जरूरी चीज आप पूछ रहे हैं. We are talking about NMC updates as well, right? I feel that we should do what the NMC has said, right? The only place जहाँ पे थोड़ा सा confusion है is P block, right?
बट आई फील कि वहां पे भी लग रहा है कि नहीं होगा, राइट? मोस्ट ऑफ द जो कंपाउंड्स हैं वो नहीं होंगे, बेसिक आइडियाज होंगे जो पीरियोडिक के एक्सटेंशन है, बट आई फील वी शुड जस्ट डू दैट। इफ यू, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार पढ़ लेना चाहिए, फील फ्री टू डू पी ब्लॉक इफ यू ऑलरेडी डन इट, बट दैट्स अ ह्यूज चंक। पी ब्लॉक बहुत बड़ा चंक है। उसके अलावा हम लोग बाकी तो सब कुछ कवर कर ही रहे हैं। वी आर वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग एल्स इज, चेक आउट ट्यूसडेज वीडियो, वी हैव अ एनालिसिस व्हाटएवर हैपेंड। कूल, ठीक है। खैर, लेट्स लुक एट दिस, इट गिव अस सम टाइम टू थिंक, राइट? या अबाउट व्हाट्स ऑन स्क्रीन आल्सो। देखो HBr है, ये रिएक्ट कर रहा है MnO2 के साथ, गिव्स यू Br2। Br2 is yellowish brown fumes, पानी मिलता है MnBr2। Now, is this a redox reaction or not? Is this a redox reaction or not? देखो ध्यान से, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं ये चीज एनालाइज करने को, ब्लाइंडली चीजें मग मत करिए, राइट? राइट डाउन दीज पॉइंट्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, रिडॉक्स है नहीं है, दिस इज व्हाट नीट विल टेस्ट। आई फील अगर मैं सवाल बना रहा होता, आई वुड टेस्ट दीज थिंग्स। नीट भी कर सकते हैं। खैर, मैंगनीज का है +4 यहाँ पे, मैंगनीज का है +2 यहाँ पे। देखो हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ब्रोमाइड आयन इज -1, राइट? Br इज माइनस, ओके। एंड हियर क्या था? ब्रोमाइड था -1, 0। दिस लुक्स लाइक अ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना? रेडॉक्स रिएक्शन तो है, ओके। सो दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ ब्रोमीन। कूल, रेडॉक्स है, ऑल राइट, ऑसम, ऑसम, गुड गुड गुड। So another test, and this is also in your lab manual, सब चीज आपके lab manual है, chapter 7 of your lab manual, I will link it here, already नहीं है, description check कर लेना, सेशन के बाद I will update it, I think मैंने डाल दिया था वैसे, खैर check कर लेना। The next test that you will talk about, confirmatory test of bromine, is the layer test. As the name suggests, एक layer पतली सी form होती है, which is very very different from the rest of the solution. What kind of solution? CCl4, or this guy right here, CCl4/this. This is chloroform. Yeah, CCl4 is a very very good solvent, non-polar solvent. मैं जब आपके साथ organic chemistry कर रहा था, when I was doing stereoisomerism, when I was doing haloalkanes, I introduced the idea of polar protic solvents, polar aprotic solvents, non-polar solvents, right? CCl4 is a non-polar great solvent, like toluene, benzene, etc. खैर, so but the interesting thing here is कि ये react कर जाता है, ठीक है? Freshly prepared chlorine water के साथ drop by drop add करो, and you do the whole Na2CO3 extract. Remember last session में we spoke about Na2CO3 extract, कुछ 1 ml of this, 0.1 gram of this, etc. etc. Shake this test tube vigorously. I know this practical chemistry यार बिना दिखाए मजा नहीं आता है, right? But in the interest of time हम लोग तुरंत अभी सेशन कर लेते हैं. We'll try and actually do these experiments in lab also, if we can get a hand on these chemicals, because some of these chemicals are a little scary, to be honest. ठीक है, we'll try to do that as well. खैर, so NABR from your carbonate extract, right? So what I have done is कि मैंने ब्रोमाइड को कन्वर्ट किया है टू NABR. Okay, what did we do? ये सब जो बहुत शब्द लिखे हैं यहाँ पे, इससे हुआ क्या? इससे बना आपका NABR, right? I had some salt, some positive ion along with bromide. Now by doing all of these steps, by doing all of this, I have converted that to NABR. Okay, now that NABR reacts with chlorine water, and in chloroform it forms NaCl and Br2. Like आई, ये तो कुछ फैंसी नहीं हुआ, तो फिर से ब्रोमीन गैस बन गई। इज दिस अ रेडॉक्स रिएक्शन? अरे वाह, ये भी है रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज आल्सो रेडॉक्स। कैसे? देखो ये -1, ये 0, ये 0, ये -1, है ना? आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरीन ऑब्वियसली हियर द एटम, एंड ब्रोमीन द एटम ओवर हियर। सो ये ब्रोमीन अलग से एक लेयर बनाता है ऊपर, राइट? ब्राउन कलर्ड लेयर ऊपर बन जाती है CHCl3 के, okay? And that is what confirms that, hey, you know what, there were bromide ions right over there. Check this out. Yeah, I wish we could actually do them for you. These reactions would be very nice, but for now we'll have to do with these amazing animations that are just popping up, right? टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था, डिटेल चैप्टर से आया था, मेरा 700+ मार्क्स आया, प्रोसेस मार्क्स आउटस्टैंडिंग है। पूनम, गुड जॉब, इट्स ओके। अभी तो बहुत कम दिन हुए हैं ये सब अपडेट के, राइट? तो अभी जैसे टेस्ट चल रहे हैं, हम चलते रहिए आपकी तैयारी से, डोंट वरी। या practical chemistry Siddharth, I am planning 4 sessions of salt analysis, and बाकी भी धीरे धीरे we'll update you with the rest. Okay, so there's this tiny layer, brown color layer, that's formed very clearly. Yeah, that is what gives you this, yeah, Br minus confirmed. Cool. So practical chemistry में will be a slightly longer thing. I don't think it'll be 12 or 13, इतने ज्यादा शायद नहीं होंगे, because 4 qualitative analysis के होंगे. There may be similar sessions of the organic part of it,
and maybe few more. Yeah, हो सकता है, could be around 12. Yeah, sure, Siddharth, possibly small, less than that I feel. उससे कम ही होंगे. We'll plan it out and give you a whole this thing. Cool. All right. ठीक है. And सबसे आसान वाला टेस्ट we are leaving it out for the last. Remember, मैं जब बात कर रहा था आपसे different ways की, या A, B and C, 3 groups of anions, या group 1, group 2, group 3, उसमें group 2 में मैंने लिखा था, I wrote in the group 2 thing that these react with concentrated H2S4 HCl, and in case of bromide ions they will also form a precipitate with AgNO3. क्यों? क्योंकि AgBr का KSP value is very very low, 10 power minus whatever 20 30 बहुत कम है. ठीक है, इसकी वजह से बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है. मैं बार बार केएसपी की बात कर रहा हूं बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट दीज टू थिंग्स, दे आर नॉट एलियनेटेड. ठीक है, ऐसा नहीं कि आयोडिक में कुछ कल पढ़ा था, आज हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, इट्स ऑल रिलेटेड. ओके, इसीलिए होता है. सो ट्राई एंड फॉर्म दीज स्मॉल कनेक्शंस विल मेक योर लाइफ इजियर, एंड ऐसा नहीं, बोझ नहीं लगेगा कि बहुत मग कर रहे हो आप. ठीक है, खैर, you acidify sodium carbonate, extract of salt with dilute HNO3, add AgNO3 to a solution and shake the test tube, and you get this nice precipitate. And this again decides to dissolve in ammonium hydroxide, but with difficulty. ये फिर से वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है जैसे रिमेंबर Ag कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया था पहले भी. But here's the thing, it doesn't happen very easily, does not happen very easily. So silver bromide forms a pale yellow precipitate. Okay. Yeah, Siddharth, I know maybe people are taking time to get it out there. Please share this with your friends if you like it. Sure, JEE के lectures बहुत होंगे, but NEET के लिए I feel that we are one of the first doing it, and that's, thank you for pointing it out, Siddharth. Please do share it with your friends as well. खैर, and ये काफी extensive है, right? What we are doing is quite detailed, and as always is also there in your lab manual NCERT में. बार-बार मैं बता रहा हूँ ये चीज. So silver bromide pale yellow precipitate बनता है. Okay. A small thing I want to remind you again, and I feel कि अगर इस चीज पे सवाल आएगा, I don't know, I have this gut feeling कि if an examiner were to test it, they would want to test this, क्योंकि एक बहुत छोटी सी डिटेल यहाँ पे है कि देखो, जब ब्रोमीन बनता है, स्टार्च पेपर को येलो करता है. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्निपेट डाल दी है from the site MEITY, you know, there's a CDAC is the government site which maintains all everything related to chemistry and stuff. Not CDAC is CDAC, but I found this from CDAC basically. I'll give you the link of that also if you want. पक्का करने के लिए कि देखो, ब्रोमीन जो है गैस, it turns starch paper yellow. Okay, I want to talk about this for a second. This starch paper yellow is not saying starch iodide paper. ठीक है, I was talking about starch paper. दोनों अलग अलग चीजें हैं. If you look for it, if you try and buy starch paper, look for it. One of it is called 18.0, the next one is called 19.0. मतलब दो अलग अलग चीजें. मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ. Starch paper is different. I'm going to write that right so that you guys don't forget it. Starch paper is different from starch iodide paper. Okay. Maybe you have not heard of what is starch iodide, but starch iodide is used to figure out अगर मेरे पास chloride ion है या bromide ion है. अगर मैं starch iodide paper डालूं chloride या bromide में, तो आयोडीन रिलीज होता है, और आयोडीन अगर रिलीज हुआ तो आयोडीन रिएक्ट्स विद स्टार्च. वो उसमें जो पॉलीमर है, amylose I want to say, wait, I don't remember the name right now, you can look it up. Okay, the polymer inside starch that gets, वो पर्पल हो जाता है. ठीक है, that's why most of the places says purple. But if you use just starch paper, bromine turns it yellow. बहुत जरूरी है, मैं 3-4 बार बोल चुका हूं, please don't forget this. Which means, let's talk about what happens for iodine next. Here's the most obvious thing to talk about, right? Indication of iodine. Iodine को यार बहुत ही colored gas होती है, right? Iodide ion अगर आपके पास है, you react with H2SO4, you get Na2SO4 HI. इसको again HI formed, reacts with H2SO4, and you get dark violet fumes. Beautiful dark violet fumes. Almost confirms. Indication लिखा है, but almost confirms iodide ions. Okay. Dark violet, very beautiful fumes. And these, they turn starch paper blue. Okay. Okay. प्रोवात आने के चांसेस हैं, right? Because NMC said कि this is the syllabus. This is the syllabus now. Practical chemistry. तो नीट में आने के चांसेस हैं. ठीक है. तो आयोडीन itself turns starch paper blue. दूसरी चीज भी यहाँ पे लिख देता हूं. Bromine plus starch becomes yellow. Okay. And bromine plus starch
आयोडाइड पेपर रिलीजेस, इस पे सवाल आ चुके हैं जेई में, इसलिए बता रहा हूं, रिलीजेस I2 which turns स्टार्च, चलो ब्लू बोल रहे हैं तो ब्लू कलर से ही लिख देते हैं ना, इट्स अ डार्कर ब्लू, बट ठीक है, भावना समझ गए आप लोग, इट्स वेरी डार्क, दैट्स व्हाई आई पुट दिस बैकग्राउंड, ठीक है, कूल, प्यार से करेंगे, ठीक से करेंगे, ओके। नाउ व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ दीज गाइस, ठीक है, मिल गया हमको स्टार्च पेपर ब्लू, ओके, these fumes become dense on adding MnO2 to reaction mixture, सेम चीज हो रही है, हम लोग MnO2 डाल रहे हैं, लास्ट टाइम भी डाला था, it'll get dense, why, look at this amazing reaction that's popping up right here. So you do the same thing, right, you've got your salt, okay, you add H2SO4 to it, उससे निकलते हैं आयोडीन के वेपर्स, आयोडीन मतलब बहुत ही डीप डार्क वायलेट कलर के वेपर्स, ओके, दैट कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट स्टार्च पेपर, इट टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लू, एंड अगर उसमें MnO2 डालो तो दी इंटेंसिटी बढ़ जाती है डार्क वायलेट फ्यूम्स की, ठीक है, कूल, सो I2 गैस प्रॉब्ली इज कमिंग आउट एंड आयोडाइड हो सकता है, कूल, ऑल राइट, हियर इज द रिएक्शन फॉर द नेक्स्ट आइडिया, नेक्स्ट क्या एक्चुअली सेम ही लग रहा है ना, लग रहा है कि तीनों हाइलाइट में वी डिड समथिंग वेरी सिमिलर, द ओनली थिंग एक्स्ट्रा फॉर क्लोरीन वाज कि हमने क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किया, अदरवाइज द प्रोसेस इज वेरी फेमिलियर, इजंट इट, यू कैन मेक नोट्स फॉर योरसेल्फ, दीज आई विल गिव टू यू, इससे आराम से आप थोड़ा लिख के बना भी लेना, ठीक है, बिकॉज व्हाइल दीज आर रियली गुड फॉर टीचिंग, अगर आप याद करने की कोशिश कर रहे हो ना, फ्लैश कार्ड बनाओ, तुरंत फ्लैश कार्ड बनाओ, that's what works for inorganic chemistry. So this is the whole process of figuring out, एक minute, go back, yeah, this is the whole extract of sodium carbonate, yeah, and again you get a yellow precipitate, insoluble in excess NOH, मतलब इस बार soluble नहीं है भाई, नहीं बन रहा है हमारा Ag का complex, this confirms the presence of iodide ions. So what's happening, AgNO3 के साथ precipitate बन रहा है AgI का, and this precipitate does not dissolve in NH4OH unlike the others, okay, बाकी जो क्लोराइड और ब्रोमाइड के थे they were dissolving, ब्रोमाइड मुश्किल से but at least कर रहा था, इसमें dissolve नहीं हो रहा है, cool, here is the confirmatory test, if you want to look at that it's going to play soon for you as well. चलिए कहां गया, अरे चलो भाई, चैट काफी शांत है, which is okay, I know, because हम लोग कुछ बस कहानी चला रहे हैं, don't worry, there will be questions that will pop up very soon. ये खत्म हो गया, चला नहीं, चल जा भाई, हाँ there you go, अच्छा दिस इज सिटिंग, थोड़ा बैठ रहा है एनिमेशन फॉर सम रीजन, छोड़ो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ओके, एनिमेशन में कलर ही दिखा रहे हैं, देख लेते हैं, सवाल करते हैं, वेक अप एवरीबॉडी, दैट्स ग्रेट राघव, इट्स गुड दैट यू आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स, एज यू लाइक, वी विल गिव यू दीज नोट्स एनीवे, दिस इज अ क्वेश्चन जो जेई में आया था 2003 में, ठीक है, उस समय प्रीलिम्स होते थे, मेन होते थे, मेन में सब्जेक्टिव पेपर होता है, प्रीलिम वुड बी एन ऑब्जेक्टिव पेपर, राइट, सो दिस इज फ्रॉम देन. So, मैं बताया था आपको लास्ट टाइम, राइट, यू विल गेट अ क्विज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, x and y and all of that, find x, find y, वैसा ही सवाल है, x plus H2SO4 gives y, a colorless gas with irritating smell, y plus K2Cr2O7 plus H2SO4 gives a green solution, x and y क्या है, ये एरो थोड़ी सी ऊपर भाग गई है, उसको हम अभी फिक्स करते हैं, डोंट वरी, बड़े सवाल को ट्राई करिए आप लोग, ये सवाल आई थिंक आप लोग कर पाएंगे, ऑल्दो इसमें कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं जैसे कि भाई हमने कभी पढ़ी ही नहीं है लाइफ में, बड़े चौके, डोंट वरी, you can still be, you should still be able to solve it, okay, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस थोड़ा सा दिमाग एलिमिनेट करके देखिए, इफ यू फील दैट मे बी कोई चीज नहीं आ रही है इसमें, नहीं मतलब न्यू, नॉट नहीं मतलब नॉट कमिंग बट न्यू, व्हाट डू यू थिंक, अच्छा ठीक है, लॉट ऑफ यू आर सेइंग डी, अ कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल, CO2 गैस की स्मेल तो नहीं होती है ना, इनफैक्ट इज वन ऑफ द थिंग्स आई वुड एलिमिनेट, देखो यार, you and I are breathing out carbon dioxide right now, okay, तो इसलिए दिमाग लगाने वाला खेल है यहाँ पे, CO2 का इरिटेटिंग स्मेल नहीं होती है, इसमें कॉज नॉजिया, अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए रूम में, रूम बंद करो, कुछ समय बाद घुटन लगेगी, but it doesn't have an irritating smell. H2S is not irritating, it has a rotten egg smell, okay, so it's either HCl or SO2, either HCl or SO2, ठीक है, with that we have eliminated options C and D, ठीक है, ओके, एनालिटिकली करते हैं हमको, बिकॉज दिस इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, हम लोग ले रहे हैं ग्रीन सोल्यूशन बन रहा है, K2Cr2O7, ये याद है, ये सवाल मैंने इसलिए डाला
because we have done this in our session in DNF block. Do you remember? मैंने इस पे एक सवाल दिया था. बनता है chromium sulphate. Cr, I want to say this is the formula. Yeah. If you don't recall, that's okay. सारे सेशंस देखिए, लाइफ आपकी ज्यादा आसान होगी. Yeah. If you watch all the sessions in order, you will clear NEET. भाई, you will top NEET, not clear. ठीक है. खैर, अभी के लिए नहीं भी देखा तो कोई टेंशन नहीं है. This is the green colored solution. ठीक है. But hold on, I think it gets further. इसका बदल जाता है to Cr. 2SO8 बनता है is also something I've written down. I'll confirm on this. ठीक है. But either way, it is not this because chloride तो नहीं था क्योंकि HCl हरा नहीं होता है. Okay. Whether it is this compound or this compound, it is not HCl because HCl हरा तो नहीं होता है. हरा solution definitely नहीं होता है. ठीक है. HCl के साथ अगर मैं यहाँ पे डालूं कौन सा था, Y is a colorless gas. हाँ, HCl के साथ अगर रिएक्ट करूं तो यू में से कि अच्छा क्लोरीन गैस निकल सकती है तो उसकी वजह से सोल्यूशन ग्रीन होगा. नहीं, अगर क्लोरीन गैस निकली दैट विल बी अ ग्रीन गैस, सोल्यूशन डज नॉट बिकम ग्रीन. ओके, कूल. यहां पे क्या हो रहा है कि SO2 और ये चीज ये ऑक्सीडाइज हो रही है. ओके, SO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू SO4 2- and this is getting reduced to Cr3+. Okay, cool. ठीक है. All right, let's look at the next question. A gas X is passed through water to form a saturated solution. The aqueous solution on treatment with silver nitrate gives a white precipitate. Safed precipitate. Safed precipitate. That's your biggest hint. The saturated aqueous solution dissolves magnesium ribbon with evolution of colorless gas Y. Identify X and Y. बहुत सही सवाल है. बहुत सही सवाल है. अब ये ध्यान से करने वाला सवाल है. Like all questions, ये भी जेई का सवाल है. But it's okay, doesn't matter. I'm proving to you जेई सवाल आप लोग आराम से कर पाओगे, कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में. देखो, सफेद प्रेसिपिटेट दे रहा है, मतलब यू मस्ट हैव क्लोराइड आयन टू स्टार्ट ऑफ विद. बट वो पूछ नहीं रहा है. नहीं, क्लोराइड आयन भी नहीं है तो गैस पूछ रहा है. अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सम गैस. लुक्स लाइक क्लोरीन गैस ही होनी चाहिए, है ना? क्लोराइड आयन नहीं तो क्लोरीन गैस होगी. कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट थोड़ी ना करेगा AgNO3 के साथ. या कर भी गया तो इट विल गिव यू AgCO3, Ag2CO3 समथिंग. आई डोंट नो. दिस सीम्स अ लिटिल फ्लेकी टू मी. दिस सीम्स अ लिटिल फ्लेकी टू मी. इसको हम लोग हटा देते हैं. मतलब सिंस आप लोग आंसर नहीं दे रहे इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग. ठीक है. इफ यू गाइस हैव आइडियाज बता दो आंसर. मतलब इट इज ईदर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. हम लोग इसको हटा देते हैं. ठीक है. बिकॉज H2 रिएक्टिंग विद AgNO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट डजंट मेक सेंस. डजंट मेक सेंस. तो क्लोरीन गैस के साथ दे रहा है हमको सफेद प्रेसिपिटेट, मतलब बन रहा है AgCl. ओके. The saturated aqueous solution also dissolves magnesium ribbon with evolution of colorless gas Y. अच्छा, अब एक बात पूछनी थी. देखो, लॉजिकली सोचो, अगर मेरे पास था, बाकी चीज देख लेंगे. मेरे पास था Cl2, मैंने उसके साथ रिएक्ट किया AgNO3. I'll write the reaction down. क्या बनता है? बनता है, अरे नहीं, इसको पहले हमने डाला पानी में. पानी में डाला ना, तो पानी में बन गया HCl प्लस HOCl. दिस इज द सेकंड पार्ट. डोंट वरी अबाउट HCl HOCl ऑन दैट. दूसरा पार्ट क्या था? HCl प्लस AgNO3 गिव्स मी AgCl व्हिच इज अ प्रेसिपिटेट. ठीक है. एंड HNO3 ये बनता है. ठीक है. अब ये मैग्नीशियम कहां गया? थोड़ी जगह लिखने की, नीचे लिख देते हैं. मैग्नीशियम reacts with HCl. What does this do? It will liberate chlorine gas and it will form NgCl2. इसको थोड़ा बैलेंस कर लें. बैलेंस तो नहीं लग रहा है. Cl गैस क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्लोरीन थोड़ी ना गैस निकलेगी. कुछ भी हम बोल रहे हैं आज, हैं? खैर, this is a redox reaction, 0 to 2+ and yeah, this is going from 1+ to 0. हाँ, हाइड्रोजन भाई साहब हो गया रिड्यूस, मैग्नीशियम हो गया ऑक्सीडाइज. इसको बैलेंस करना है, कर लो यार. 2 डाल दो यहाँ पे, हो गया बैलेंस. ठीक है. सो लुक्स टू मी लाइक द आंसर इज गोइंग टू बी क्लोरीन एंड H2. कोई डाउट? कोई डाउट? व्हाई इट इज सी? राघव, गुड जॉब, गुड जॉब. पूनम, यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि लॉजिकली कार्बन तो कहीं है ही नहीं. मैं यही कहानी, इतनी कहानी इसलिए लिखा, वेयर डज कार्बन इवन कम फ्रॉम, राइट? सो ये सवाल भी बहुत जल्दी किया जा सकता था इफ यू आइडेंटिफाइड वन थिंग. पहली बात, अगर प्रेसिपिटेट सफेद कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है विद AgNO3, मस्ट बी क्लोरीन या क्लोराइड आयन. तो वंस यू आइडेंटिफाइड दैट, यू हैव एलिमिनेटेड A and D.
उसके बाद ध्यान से देखो यार, whatever you do, कार्बन कहां से आएगा? Where does CO2 come from? CO2 will come if there's some carbon containing species. अब यहाँ पे तो कुछ कार्बन है ही नहीं, है ना? Hence that could be eliminated. That is a quick way of doing it. हमने प्यार से इसको सॉल्व किया, but it is also a quick way of doing it. Okay? Good job. Is that all right? कोई डाउट है तो पूछ लो. ये लग रहे होंगे ये सवाल थोड़े मुश्किल हैं, बट ये बस सोचने वाले सवाल है. देखो कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कुछ मैथ्स नहीं है. आई नो कुछ आप में से कुछ लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है इतना, बट देखो कुछ मैथ्स नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा सोचने वाला है चीज, राइट? इज इज ओके? कोई डाउट्स है? प्लीज आस्क इफ यू हैव डाउट्स. सेशन भारी तो है, आई एग्री विद यू, लॉट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट? तो मुश्किल लग रहा होगा, इट्स ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, यू विल बी ऑल राइट. थोड़ा प्रैक्टिस करिए. पूनम, क्विकली रिपीटिंग, अगर रिएक्ट किया है AgNO3 के साथ और दिया है सफेद प्रेसिपिटेट, रिमेंबर AgBr, AgI आर येलो प्रेसिपिटेट्स. सवाल में है ही नहीं, बट ठीक है बता रहा हूं, येलो है, सफेद AgCl प्रेसिपिटेट है, ठीक है? सो अगर AgCl बना मतलब शुरुआत में होगा क्लोरीन. अगर शुरुआत में होगा क्लोरीन, दैट मींस यू रिमूव दीस टू. X गया, मस्ट बी क्लोरीन, यू आइडेंटिफाइड X. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो भी है, जो Y आइडेंटिफाई करना है, भाई Y कैनॉट बी CO2. वेयर विल कार्बन कम फ्रॉम? कार्बन तो है ही नहीं ना. फॉर कार्बन टू कम एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, maybe if you start with carbonate, but yeah, it's not possible. इसलिए एलिमिनेट कर दो, मिल गया. इफ यू वांट मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे इससे पहले ही देखिए, यहाँ पे पूरा जो है सारे रिएक्शन सब एक साथ दिए हुए हैं, ठीक है? गो थ्रू दिस, आई विल शेयर द नोट्स, आराम से देखना, ठीक है? ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू नाइट्रेट आयंस. Let's move on to nitrate ions. Lucy, what's up? How are you doing? Nitrate ions are the last type of group B, and another thing that is, it's got a unique flavor to it. Okay. Concentrated H2SO4 के साथ brown fumes निकलते हैं. Brown fumes किस चीज के? NO2 गैस के. You remember जब हम लोग nitrite ion कर रहे थे, इस पे भी सवाल पूछा सकता है, राइट? नाइट्राइट, उसमें हम लोग ने बोला था कि ये ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं बट डाइल्यूट H2SO4 डालने से. यहां पे ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं concentrated H2SO4 डालने से. दैट्स द प्राइम डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयंस इन दिस इंडिकेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, सॉरी. यू एड अ लिटिल बिट ऑफ कॉपर टर्निंग एंड दिस बिकम्स ब्लू बिकॉज बन जाता है कॉपर सल्फेट. ओके, हियर इज द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ थिंग्स. You get nitrate ions, they immediately in water, I mean in concentrated H2SO4, they form HNO3, ठीक है? And HNO3 भाई साहब है strong oxidizing agent, तो since ये strong oxidizing agent है, खुद हो जाते हैं reduce. अगर ये हो गए reduce, तो कुछ और होगा ऑक्सीडाइज, कुछ हो रहा है ऑक्सीडाइज. हाँ भाई, ऑक्सीडाइज तो जरूर हो रहा है. ये हो गया 0, यहाँ पे था -2. You see that? So this is a redox reaction. You see that? You see that this is a redox reaction? Yeah, thanks Lucy, I will. Thank you for the concern. बात करनी पड़ती है इनऑर्गेनिक में, क्या करें? Redox reaction दिख रहा है आप लोग? This is the gas that's formed. I'll repeat what I said. Okay? H2SO4 डालने से ही बन जाता है HNO3, which is one of the strongest oxidizing agents. Even stronger than H2SO4. Even stronger than H3PO4. H2SO4 अलग चीज है, ठीक है? Oxidizing की बात नहीं हो रही उसकी. Let's talk about HNO3 being a strong oxidizing agent. That's what we're talking about here, right? So it oxidizes this and gets it out of the way. ठीक है? Redox reaction हो रहा है. Okay. Now the confirmatory test for this is the brown ring test. बहुत famous test, like the bromide chloride test. Brown ring मतलब कुछ ring बनेगी brown color की. Yeah. You take a saturated solution of iron to sulphate, add it to this nitrate solution, and then concentrate H2SO4 add करो. वही सब करो. ये सब करने से बनेगा तुम्हारा NO2 gas. Now that NO2 gas forms a ring. Why? Because a very funky, very scary sounding compound gets formed. Here it is in front of you. ठीक है? ये था आपका नाइट्रेट कंपाउंड, H2SO डाला, बिना ये बना बिना एसिड. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देखो यहाँ पे दिखा रहा है अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. इट्स ऑक्सीडाइजिंग FeSO4 एंड इट फॉर्म्स 2+ से 3+. यहाँ पे ये है कहाँ पे? दिस इज 5+. अरे ये तो बहुत छोटा हो गया, NO बन गया सीधे, है ना? NO is +2 and then NO reacts with FeSO4 and gives you a brown ring. ठीक है? And this looks like a scary name, but ये तो बहुत सिंपल है. देखो, पेंटा, aqua, nitrosonium,
आयन 2 सल्फेट। ओके, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, पेंटा मतलब 5, एक्वा मतलब पानी, पेंटा पेंटा और यहाँ पे यहाँ शुरू एक्वा, नाइट्रोसोनियम इज द NO प्लस आयन, नाइट्रोसोनियम इज द NO प्लस आयन, एंड या आयन 2 मतलब इसका जो है अंदर वाला जो है वेकेंसी इज वैकेंसी नहीं, वैलेंसी इज 2 प्लस सल्फेट एंड दिस फॉर्म्स द ब्राउन कलर रिंग। कूल, ठीक है। भारी है आई नो, लाइक द रेस्ट ऑफ इट, बट डोंट वरी, हम लोग एक क्विक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट मेक नोट्स अबाउट एंड ट्राई एंड राइट डाउन समवेयर, बिकॉज दिस इज अगेन समथिंग दैट इज टेस्टेड अ लॉट, ठीक है। सो ऑन एडिंग द मेन थिंग इज कि HNO3 बनता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, which means कि it itself gets reduced. Okay, nitrate ion से बन जाता है HNO3, that gets reduced. It oxidizes FeSO4, becomes Fe sulfate, and then that reacts with the NO that's formed to form this brown ring. Okay, ठीक है? कोई doubts है? अक्षु, good evening. भाई अक्षु, always here 5 minutes before the class ends. You got a talent for this. चलो कोई नहीं, अभी 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट नहीं. You're early. ठीक है? कोई doubts guys? That was the end of group B. ये हो गया. Now we'll go to group C. Any doubts? Marathon चल रहा है, right? कोई है यहाँ पे? Salt analysis, भारी चीज. But it's okay. We'll do this together and ऐसे ही करेंगे कि we'll do a lot of theory and then we'll do questions also. साथ सब चीज करेंगे. कोई doubts है तो पूछ लो, and otherwise I will move on to the next one. Okay? Thank you so much for the positive feedback. So let's now move on to the group C elements. Group C element नहीं भाई, group C ions. Nothing happens either with HCl or with H2S4. दोनों के साथ कुछ नहीं होता है. But barium 2 plus सच बनता है precipitate, and that is the sulfate ion. What's up, Azhar? Cool. So for the sulfate ion, you go with the sodium carbonate extract, acidified with acetic acid, add BaCl2, बन जाता है BaSO4. खत्म, as simple as that. Na2SO4 plus BaCl2 gives you BaSO4 sulfate. ये सबसे सिंपल वाला है, right? Not complicated at all. ये तो इसमें कुछ देखना है. Do you want to see this one? We can play this if you want. ठीक है. Here's the salt solution. Surprise! There's going to be a precipitate that will get formed very, very soon. Yeah, acetic acid, Na2CO3. That's what you add. This is the, if you are worried about why am I adding a sodium carbonate extract, why not water? Because the thing is कि भाई बेरियम भाई साहब उसी में तुरंत प्रेसिपिटेट कर जाएंगे. ओके, सो यू ऐड अ सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्सट्रैक्ट, ऐड BaCl टू इट एंड इमीडिएटली BaSO4 नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है इमीडिएटली. ठीक है, एंड दैट्स इट. दैट वाज दैट अबाउट द सल्फेट टेस्ट when you add barium 2 plus ions to it. Okay, this is the reaction that goes on in the background. Cool. Now this sulfate ion, it also gives a white precipitate with lead sulfate. But precipitate of lead sulfate. So take the same sodium carbonate extract, neutralize with acetic acid and treat with lead acetate solution. You may see this way, ये तो similar लग रहा है. हमने lead acid पहले भी use किया था. Yes, absolutely किया था. And we are going to do it once more. We'll get a white precipitate. उस समय हमने use किया था to get chromyl chloride में भी हमने use किया था, right? So you will see that a lot of reagents are repeated. So make a list of that. कि अच्छा इस चीज में ये चीज है, इस चीज में ये था, इस चीज में ये था, and then you know make these tables. They'll help you out a lot. सवाल करें. A colorless solution of a compound gives a precipitate with AgNO3 solution, but no precipitate with a solution of Na2CO3. अच्छा. The action of concentrated H2S4 on the compound liberates a suffocating reddish brown gas. Suffocating reddish brown gas. यार इससे तो मुझे लग रहा है कि ये ब्रोमीन होना चाहिए, बिकॉज आयोडीन का अगर गैस निकले तो आयोडीन मस्ट बी वायलेट, राइट? क्लोरीन मस्ट बी हरी ग्लास, एंड ये एसिटेट, बेरियम एसिटेट, तो दिस इज एन इंपोस्टर. लेट्स कट दिस वन आउट. लेट्स कट दिस वन आउट. व्हाट डू यू गाइस थिंक? व्हाट डू यू गाइस थिंक इज द आंसर टू दिस वन? बताइए. Oh, Azhar saying C, NaI. Okay. Think about it. Poonam also saying NaI. देखो, आयोडीन का कलर इज वायलेट, सो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू फॉर्म. ओके, पहली बात, अगर ये प्रेसिपिटेट सोडियम के साथ नहीं दे रहा है, Na2CO3 के साथ नहीं दे रहा है, दैट मींस दैट दिस मस्ट बी अ सॉल्ट दैट हैज द आयन इन इट. सो यू कैन कैंसिल आउट A and B by the fact that this is a sodium plus का salt, because it does not react with Na2CO3. Okay,
So salt has the Na plus ion in it. What's the counter ion? Counter ion must be bromide. क्यों? क्योंकि भाई reddish brown gas. Iodine is not reddish brown. Yes, thank you Radhika, thank you Raghav, thank you Akshu, Poonam and Dr. Azhar for all your answers. सही जवाब is option D, which is NaBr. Good job. Yes, Loveleen, absolutely. अगला सवाल देखते हैं. सवाल आते ही सब लोग जाग गए. अच्छी बात है. Which anion does not liberate any gas with dilute as well as concentrated H2SO4? तो या मैं लूं dilute या मैं लूं concentrated H2SO4, दोनों में भाई नहीं करेगा कुछ. No gas will get liberated. What do you think? Just revising everything we've done so far. Session is almost done. If this helps. 2-3 सवाल ही हैं बस बचे हुए. अरे दूसरा सवाल आ गया. हाँ नहीं यही था सवाल. बताइए बताइए. डर गए? यही तो था. Group A was carbonate and sulphide. Okay. And NO2 minus. Group B was these two guys and I minus and Br minus. Group C was only sulphate. अब Group A, Group B, Group C में क्या था? Group A was dilute H2SO4 or HCl. Group B was concentrated H2SO4 या HCl and then AgNO3 के साथ precipitate. Group C रिएक्ट करता ही नहीं है क्योंकि सल्फेट आयन ऑलरेडी है. सल्फेट आयन विल नॉट रिएक्ट H2SO4. HCl साथ भी रिएक्ट नहीं करने वाला है. Hence this should be answer. Should be D. Should be D. Good job Poonam. All right. Yeah. Excellent. Excellent work. Radhika, Dr. Saab, Akshu and Raghav. Do you see why it is this? Yeah. Guess मत करिए दोस्तों. Guess मत करिए. ये वाला तो डायरेक्ट वाली चीज है. 3 ही ग्रुप्स हैं. 3 ग्रुप्स में मैंने आपको बता दिया कैसे हैं. What are the 3 groups? Here they are again. ध्यान से इसको 3 बाद में देख लेना. Cool. Let's look at another question. In addition of concentrated H2SO4 is made, if addition of concentrated H2SO4 is made to an unknown salt, a colorless and odorless gas is produced. Oh. Colorless or odorless gas? भाई ये तो odorless तो नहीं होगा. ये तो H2S बनेगा. ठीक है. ये HCl बनेगा, पंजेंट होगा. ये तो गैस नहीं निकलेगा. इसमें निकलेगा HNO3. HNO3 will give you NO and that react will give you NO2 बनेगा and this is brown, right? तो भाई बचा क्या? Must be this. Must be this. Must give CO2. Must be A. Yes, good job. Good job. Must be A. ठीक है? This is the quick way of doing it. अब मैं आपके साथ ही सवाल सॉल्व कर रहा था. Excellent work पूनम and Radhika. The answer of this is option A. So इस टाइप के सवाल आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं. Okay? Because this is the same thing that's been happening in JEE. So you see, the questions are not very hard. बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है. Whether it's JEE or NEET doesn't matter. Doesn't matter. है ना? Yes, absolutely right, Raghav and lovely. अगला सवाल देखें. ये पूछा गया था JEE 2006. अरे बाप रे, this was the year that I gave JEE. That's very interesting. That was the first year when JEE was MCQ based and main और prelim हटा लिया था. The species present in solution when CO2 is dissolved in water. अरे ये तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का सवाल आ गया है ना. ये तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का सवाल है. ये तो दिस इज नॉट इवन बेस्ड ऑन सॉल्ट एनालिसिस. थोड़े टफ है राधिका, आई नो. जब एनीथिंग यू डू फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, टफ ही लगता है. इफ यू आर डूइंग इट रिपीटेडली, बार बार, आसान हो जाएगा. यू आर ऑल डूइंग सो वेल ऑन द क्वेश्चंस एंड जनरली हमारे सेशन में हम लोग करते हैं बिकॉज वो आप चीजें ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं देख चुके हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू डूइंग इट. इट्स ऑलराइट, डोंट वरी अबाउट इट. इसका आंसर क्या होगा? आपको केमिकल इक्विलिब्रियम याद है? इसका आंसर मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है. जेईई में पूछा गया था, बट यू नो द आंसर टू दिस. व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू पुट CO2 विद वाटर? बन जाता है H2CO3. नाउ दैट H2CO3 इज अ वीक एसिड. मतलब देगा पहले HCO3 माइनस और H प्लस. अब वो बेचारा HCO3 माइनस और डिसोसिएट होके बनेगा CO3 माइनस एंड H प्लस. अब ये डबल हेडेड एरो एक्चुअली इधर भी है, नॉट जस्ट हियर आल्सो. ठीक है, मतलब कि सब आयन्स ही एग्जिस्ट करेंगे, लुक्स लाइक, है ना. HCO3 माइनस, यस. H2CO3, हाँ. CO3 माइनस, हाँ. CO2, हाँ. तो आंसर शुड बी ए. द आंसर शुड बी ए. ओके, इसलिए मैंने बोला कि देखो ये तो लग रहा है सॉल्ट एनालिसिस का, बट एक्चुअली इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था ना. दिस was a polyacid का example, which is something we have covered in equilibrium also. Nothing new. मुश्किल लग रहा होगा, but it's definitely nothing new. चलो,
नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था एग्जामिनर्स का? असर्शन रीजन सवाल। तो चलो एक असर्शन रीजन सवाल देखते हैं। सल्फेट इज एस्टिमेटेड एज BSO4 एंड नॉट एज MgSO4। ओके, ये तो सही बात है ना? हम लोग अभी यही तो कर रहे थे। आयोनिक रेडियस ऑफ Mg2+ is smaller than barium 2 plus. Mg2 plus is smaller than barium 2 plus. अच्छा, क्या? Let's write down. You got sodium, you got magnesium, then potassium, and then calcium, and then something else, and then barium. कहीं ना कहीं नीचे होता है। तो जिनसे going down the group, रेडियस तो बड़ा इसका होगा, रेडियस तो बड़ा होगा इसका। एंड ये भी सही बात है। ये दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, मतलब वी कैन क्रॉस आउट C एंड D। दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, बट डू यू थिंक दिस इज द रीजनिंग बिहाइंड दिस? इसका भी मैं आपको हिंट दे चुका हूं, राइट? द रीजनिंग व्हाई वी यूज बेरियम टू एस्टिमेट इट इज भाई बेरियम सल्फेट का बहुत कम है, बहुत इट डिटेक्ट्स वेरी वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन सल्फेट आयन विद इट, बिकॉज उसका KSP बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है। ओके, यस, बी होगा, एब्सोल्युटली राइट पूनम, गुड जॉब। इट्स ओके अक्षु, गलत सही कुछ नहीं है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, गलत हो गया तो क्या हुआ, अब आगे से यू विल नो दिस, एंड दैट्स द थिंग, राइट? कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, और वो जो सवाल से ही आप थ्योरी आराम से पढ़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली, राइट? थ्रू आउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इवन इन बायोलॉजी। आई एम श्योर काफी समय ऐसा होता है कि अरे सवाल थोड़ा बहुत क्लोज है तो कभी कभी गलत हो जाता है, एंड देन यू रिमेंबर फॉर नेक्स्ट टाइम कि हां दिस विल बी गुड, दिस विल बी गुड, विल फिगर इट आउट। यही करना है यहाँ पे भी, यही करना है यहाँ पे भी। आंसर शुड बी बी। गुड वर्क पूनम एंड राधिका। लास्ट सवाल देख लेते हैं एक, then we call it a day, right? लास्ट सवाल, डेफिनेटली लास्ट सवाल, टाइम भी कहां खत्म ही हो रहा है। In which of the following reactions a brown colored gas is evolved? Brown colored gas. अब you be like, I know this one. Brown colored gas मतलब निकल रहा होगा NO या फिर NO2। अब पर सब में है नाइट्रोजन भाई। ए को एलिमिनेट कर देते हैं, ए को हटा देते हैं, क्योंकि ए नहीं होगा, ए में नहीं है भाई नाइट्रोजन, बट बाकी सब में NO, NO2, NO3 है। देखो NH4NO2 इज एक्सेप्शन टू दैट रूल, ठीक है? ये तो क्रूएल वाला सवाल हो, काफी क्रूएल सवाल है। दिस डज नॉट गिव यू I shouldn't be laughing. I'm not laughing, at anything. I understand that this is a cruel question, because how are you going to figure out between B, C and D? ये कौन सा सही जवाब होगा, है ना? So here is what you do, right? Well, you just have to know the theory. That's the only way to do this. When you heat NaNO3, मैं पहले आसान वाला दिखाता हूँ, ठीक है? You get NaNO2 and you get oxygen gas, ठीक है? ये दोनों चीजें मिलती हैं। NH4NO2 को हीट करने से you get nitrogen and H2O. Now this is the exception. Normally, this is the exception. मैंने पहली बार जब nitrite ions के बारे में पढ़ाया था, right? मैंने बताया था कि most things on heating just gives you oxygen gas and NO2 gas. But this is the exception to that. एक और exception था जो मैंने आपको वहां पे दिखाया था. This is the other exception to that. ठीक है? The easy one must be then, भाई answer must be D, और कुछ तो बचा ही नहीं, सब हमने cancel out कर दिया। अगर तीनों cancel out कर दिए, chat देख रहा हूँ, एक मिनट, अगर तीनों cancel out कर दिए तो आंसर must be D, है ना? AgNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट शुगर। अरे भाई यही तो टेस्ट है, AgNO3 देख के डरो मत। AgNO3 मतलब नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन का टेस्ट ही है H2SO4 के साथ। क्या होता है? H2SO4 के साथ बन जाता है HNO3, इसके साथ बन जाता है NO गैस, और दिस विद सम मोर दिस थिंग FeSO4 गिव्स यू दैट ब्राउन रिंग टेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है? अगर ऑक्सीजन इसको मिल गया बेचारे को तो बन जाएगा वहीं पे NO2, ठीक है? शुड बी D। हाँ, yeah. With that, we're done with the second part of salt analysis, and we have covered all of the anions. Talia for all of you for sticking around for so long. करना पड़ेगा ना, नीट है तो करना पड़ेगा। I know this is an uphill battle, right? Because पहली कभी नीट में ये सब चीजें आई नहीं है, डर लग रहा है। Don't worry, we've got to figure out, हम लोग प्यार से ध्यान से करेंगे। With that, anions complete हो गया। अगली बार I'll meet you most likely on Tuesday, coming Tuesday. We'll talk about cat ions। थोड़ा सा प्लीज रिवाइज करके आइए कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, दिस इज आंसर टू दिस वन। रिवाइज कॉमन आयन इफेक्ट फॉर
कैट आयन एनालिसिस, बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया है, प्लीज करके आइए, ठीक है। ऑल राइट, एग्जैक्टली राघव, एग्जैक्टली। थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज पहली बार सब लोग कर रहे हैं, बट यू विल बी ऑल राइट, ठीक है। आई नो यू हैव मोर सेशंस प्लान फॉर द डे, सो आई लेट यू गेट गोइंग। हम लोग मिलते रहेंगे, आराम से चीजें करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, वी गॉट यू कवर्ड, ठीक है। बाय। 7:15 8:30 और सेशन है, प्रिपेयर फॉर देम। गुड नाइट।